নমস্কার বন্ধুগণ, আজকে ভিডিওতে স্বাগতম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এর আগের দিনকে উনি দ্য কেরালা স্টোরি সম্পর্কে উনি বলতে গিয়ে উনি কাশ্মীর ফাইলসের প্রসঙ্গ টেনে আনেন যে কাশ্মীর ফাইলসের জন্য বিজেপি ফান্ডিং করেছে বিবেক অগ্নিহোত্রীকে, মানে কাশ্মীর ফাইলসের যে নির্দেশক, কেরালা স্টোরির জন্য ফান্ডিং করা হয়েছে, এইরকম এই ধরনের মন্তব্য উনি করেন। এবং তারপরে বিবেক অগ্নিহোত্রী মমতা ব্যানার্জির উপর একটা লিগ্যাল স্টেপ নেন এবং তাকে আইনি নোটিশ পাঠান যে উনি ওনার বক্তব্যকে এক্সপ্লেন করুন যে কোথায় বিজেপি তাকে ফান্ডিং করেছে বা কোথা থেকে এই ইনফরমেশন তিনি পেয়েছেন। তো এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে উনি বিবেক অগ্নিহোত্রী মমতা ব্যানার্জিকে লিগ্যাল নোটিশ পান। গতকালকে মমতা ব্যানার্জি নোটিশ রাত্রি তিনি পেয়ে যান। কী হয়েছিল ঘটনাটা আমরা দেখব। Why this Kashmir files? To humiliate one section. माननीय श्री ममता बनर्जी जी ने कश्मीर फाइल्स के और मेरी अगली फिल्म जो कि बंगाल के जेनोसाइड के ऊपर है उसके ऊपर लांछन लगाए। Some stars nominated by BJP, funded by BJP. They came to Bengal also, and along with some distorted stories, the concocted stories, they are preparing a film, Bengal Files. उन्होंने कहा कि मुझको कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए और अगली फिल्म बनाने के लिए बीजेपी स्पॉन्सर करती है, फंड करती है। They gave some poster in highest court that said Bengal. What happened Bengal? Nothing happened. हम उनके अगेंस्ट एक कानूनी कार्रवाई करें और आज हमने अभी उनको ये लीगल नोटिस भेजा है। कल बंगाल की चीफ मिनिस्टर माननीय श्री ममता बनर्जी जी ने कश्मीर फाइल्स के और मेरी अगली फिल्म जो कि बंगाल के जेनोसाइड के ऊपर है उसके ऊपर लांछन लगाए। उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि मुझको कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए और अगली फिल्म बनाने के लिए बीजेपी स्पॉन्सर करती है, फंड करती है। ये एक बहुत ही डिफेमेटरी, मेरे लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करने वाली और सरासर झूठ, बिना बेबुनियाद बात है जो कि पॉलिटिकल एजेंडा के तहत अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता जी ने ऐसा बोला है। और इसके लिए मैंने मेरे प्रोड्यूसर श्री अभिषेक अग्रवाल जी और पल्लवी जोशी जी ने ये निश्चय किया है कि हम उनके अगेंस्ट एक कानूनी कार्रवाई करें और आज हमने अभी उनको ये लीगल नोटिस भेजा है, आप देख सकते हैं। और ये आपके सबसे पहले मैं आप ही को बता रहा हूँ, ये लीगल नोटिस हमने उनको भेजा है और उनसे कहा है वो एक्सप्लेन करें कि उनने जो बातें कही हैं उसका तथ्य क्या है। अदरवाइज ये पूरी तरह से डिफेमेटरी विद मैलिफाइड इंटेंशन और मेरी नज़र में एक आदमी की जो रोजी रोटी, जो उसका लाइवलीहुड है, उसको इम्पैक्ट करने के लिए गलत इंटेंशन से किया गया है। তো আমি আগের দিন দর্শক বলছিলাম কেরালা স্টোরি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে অবস্থান নিয়েছে, পুরো পশ্চিমবাংলায় ব্যান করেছে, কেরালা স্টোরি দেখা হবে না, এবং সেই প্রসঙ্গে কথা বলতেই কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে কথা বলেছেন। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেক অগ্নিহোত্রী যে স্টেপ নিয়েছে একদম সঠিক নিয়েছেন বলে এটা আমি মনে করি এবং এই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কারণ মুখ্যমন্ত্রী মানে উনি কোনো কিছু চিন্তাভাবনা না করে, আমার মনে হয় ওনার আশেপাশে যারা থাকে তারা তাকে ভুল পথে তাকে সাজেশন দেয়, তাকে ভুল পথে পরিচালনা করে। তিনি কি আদৌ কখনও কেরালা স্টোরি দেখেছেন? তিনি আদৌ কখনও কাশ্মীর ফাইলস দেখেছেন? উনি এই ধরনের মন্তব্য করেন কী করে? যেখানে এত মানুষ, যেখানে কাশ্মীর ফাইলসে যেখানে এত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সেখানে থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, যেখানে কেরালা স্টোরিতে কেরালার যে ওখানে মা বোনেরা আছে তাদেরকে আইএসএ সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে তাদের যোগদান করানো নিয়ে একটা চক্রান্ত ওখানে হয়েছে। তো এই সব জিনিসগুলো উনি কি না দেখে কি করে সন্ত্রাসবাদের সাপোর্ট নিচ্ছে? তো এটা অত্যন্ত হাস্যকর এবং অত্যন্ত দুঃখজনক একটা ব্যাপার। তো তার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেক অগ্নিহোত্রী যে স্টেপ নিয়েছে একদম 100% সঠিক নিয়েছেন। উনি আরও কী কী বলছেন আমরা শুনে নিই। देखिए, वो तो कश्मीर फाइल्स के वक्त ही इतने फतवे और सब आए तो उसके कारण मुझे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिक्योरिटी दी हुई है। लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ शरीर की नहीं होती है, सिक्योरिटी आपके परिवार, आपकी भावनाओं की, आपके दिमाग की भी होती है। चारों तरफ से मैं पिछले
1 साल से कैसे जी रहा हूं मैं ही बताता हूं। मैंने अभी लिखा भी था कि टू क्रिएट हेवन यू हैव टू लिव इन हेल। आज भारत के पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट ने और कई सो कॉल्ड कम्युनल फैक्ट चेकर्स ने मेरा जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है। मुझे सफोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे साइलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। कई फैक्ट चेकर्स हैं जो कम्युनल फैक्ट चेकर्स हैं, उन्होंने मेरी बेटी की फोटोज इंस्टाग्राम से उठा के उनको पॉपुलराइज किया, जो कि एक डेमोक्रेसी में, एक सभ्य डेमोक्रेसी में बहुत ही घिनौना, बहुत ही ज्यादा घिनौना अपराध है एक लड़की, एक बेटी के साथ ऐसा करना। पर मैं खामोश रहा। तरह तरह की बातें दिल्ली की विधानसभा में, उसके बाहर बंगाल में ममता जी ने कितनी अभ्रत बातें करी हैं, पर मैं चुप रहा। इसलिए मुझे लगा कि क्यों इसमें आग लगाना और क्यों बात को बढ़ाना। लेकिन अब एक प्रजातंत्र में एक फिल्म मेकर का बोलना और जीना दूभर किया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाना। और मैं चाहता हूं आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए एक इतना बड़ी मिसाल मैं क्रिएट कर दूं कि किसी की मजाल नहीं हो आज के बाद एक क्रिएटिव फिल्म मेकर की आवाज को दबाने की। आपको लगता नहीं इससे क्रिएटिविटी पे आपकी इफेक्ट होती है, जो डर का माहौल होता है, इससे कहीं इफेक्ट होते हैं? आप मुझे बताइए, मेरा काम फिल्म की स्क्रिप्ट्स लिखना और फिल्में बनाना है, और उसके बदले मैं आज आपके सामने ये लीगल केसेस लड़ रहा हूँ। हर कोई इतने सारे मेरे अगेंस्ट लीगल केसेस क्रिएट कर दिए गए हैं कि मैं लॉयर्स को सारी जिंदगी जानता नहीं था। आज इतने सारे लॉयर्स के साथ मुझे काम करना पड़ रहा है। मैं कुछ दिन पहले बंगाल गया था डायरेक्ट एक्शन डे के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहता हूं कि भारत के हर जन जन को ये बात पता चले, सत्य और झूठ का फैसला वो करे। 16 अगस्त 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, उसकी फोटोग्राफ्स आप टाइम मैगजीन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में देख सकते हैं। गिद्ध, वल्चर्स, चील, कौए इंसानों की बोटियां खा रहे हैं लाखों की तादाद में, और सड़कें जो है सिर्फ नर कंकालों से भरी पड़ी हैं। ये मैंने तो नहीं क्रिएट किया। इसकी कहानी बताने के लिए मैं बंगाल में अपनी टीम को भेजा था, जिन्होंने त्रिपुरा में, असम में, बांग्लादेश बॉर्डर पे, जहां भी आज ये 90-100 साल के जेनोसाइड के जो सर्वाइवर्स हैं, उनके इंटरव्यू करने। और उन इंटरव्यूज करते करते हमको ये समझ में आया कि उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी थी, जो सोच थी, वो आज भी विद्यमान है। इसीलिए भारत कब टूटे इसका भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत को तोड़ने के लिए कई शक्तियां काम कर रही हैं। उन शक्तियों के अगेंस्ट खड़े होके, उन लाइफ थ्रेट्स और फतवों के अगेंस्ट खड़े होके इस तरह की फिल्म बनाना, भारत के पार्टीशन के सत्य को दिखाना, मैं अपना धर्म समझता हूँ। जो चीज मीडिया और पॉलिटिशियंस बताने में फेल हो गए, मैं अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकर बोलता हूँ। একদম সঠিক। আমি বিবেক অগ্নিহোত্রীকে একদম 100% সাপোর্ট করি, এবং উনি যা কথা বলছেন যে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডের দিনে যা হয়েছিল তা অত্যন্ত দুঃখজনক, এবং তার জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ইন্টারভিউ করেছেন। এবং সেই চিন্তাভাবনা যে আজকেও আমাদের সংস্কৃতি বিদ্যমান, সেই জিনিসটা উনি তুলে ধরার চেষ্টা করছেন, যাতে আমাদের দেশের বিভাজন না হয়। আর তাকে এরকমভাবে সবসময় বলা যে তাকে বিজেপি ফান্ডিং করছে বা কিছু, এগুলো কখনোই উচিত নয়। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো হঠাৎ করে ভুলভাল মন্তব্য করে দেয়, তো যেটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং খুবই খারাপ। তা কলে পড়ে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী, এরকম একটা মন্তব্য করে উনি ফেঁসে গিয়েছেন। তো যাই হোক, দেখা যাক আগামী দিনে কি হয়। কি বলছেন বিবেক অগ্নিহোত্রী, আমরা আসুন শুনে নিই। गई तब जाके वो बचे, और ये सरकारी ममता बनर्जी जी की सरकार के दस्तावेज में है कि पुलिस ने आके मेरी रिसर्च टीम जो कैमरे के साथ रिसर्च कर रही थी, उन्हें गोपाल पाथा जी के घर के आसपास जिस तरह से घेर लिया था एक सो कॉल्ड कम्युनिटी या एक सेक्शन के लोगों ने, उनसे बचा के पुलिस लेके आई उनको। मैं अभी वहां गया था, पूरी टीएमसी की टीम ने मेरे अगेंस्ट एफआईआर देने की, जान से मारने की, बंगाल में तुम्हें कभी घुसने नहीं देंगे, इस तरह की धमकियां दी हैं। उसके अलावा मेरी बुक साइनिंग थी। मैं जिस शहर में जाता हूँ, अर्बन नेक्सल्स बहुत बिकती, तो उसकी साइनिंग के लिए मुझे बुलाते हैं। जिस मॉल में मुझे बुलाया गया था, उस मॉल में उसको बैन कर दिया गया, इसलिए बोल के कि उसके आसपास वो मुस्लिम एरिया है, और उन्हें वो मुस्लिम एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए उसको शिफ्ट करके एक मॉल से दूसरे मॉल में शिफ्ट किया गया लास्ट मिनट पे, जिसके बारे में मैंने लिखा भी था, जिसके बारे में सब जानते हैं, वहाँ के मीडिया में भी खबरें आई थी। क्या ममता जी का ये फर्ज नहीं बनता था एक फिल्म मेकर को अपने स्टेट में सिक्योरिटी देने का?
अपनी स्टेट में वो बॉलीवुड के बादशाह को बुलाती हैं, बादशाहों को बुलाती हैं, और बॉलीवुड के बादशाह वहाँ खड़े होकर फ्री स्पीच की बात करते हैं। वो कहते हैं इतना नेगेटिविटी का माहौल है लेकिन हम पॉजिटिव हैं। तो जहाँ पे बॉलीवुड के बादशाह फ्री स्पीच की बात ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर करते हैं और ममता जी उसको एंडोर्स करती हैं, तो क्या मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ? क्या मेरे को अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी? ममता जी मुझे मेरी जान की रक्षा करें इस बात के लिए। ये मैं और बातें कर रहा हूं, लेकिन आज के बाद मैंने तय कर लिया है और मैं अपनी बात का पक्का हूं। कोई भी व्यक्ति आम ट्रोल सोल्स बोले, मुझे उसकी चिंता नहीं है, पर अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई जर्नलिस्ट जिनकी बात को जनता सत्य समझती है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आज के बाद कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बोलेगा, तो अगर वो सच्चा व्यक्ति है, आके प्रूव करे कि उसका कौन सा शॉट, कौन सा फ्रेम, कौन सा फैक्ट गलत है, या हमारी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रांग लीगल कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। ममता बनर्जी जी को हमने लीगल नोटिस भेजा है, हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। कश्मीर में नहीं रहते हैं, क्या इससे बड़ा सबूत चाहिए जेनोसाइड का? क्या है प्रोपेगेंडा? क्या टेररिज्म के बारे में बात करना प्रोपेगेंडा है? क्या कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ उसके बारे में फिल्म बनाना प्रोपेगेंडा है? इनको जेनोसाइड से प्रॉब्लम नहीं है, इनको फिल्म से प्रॉब्लम है। बंगाल में जो डायरेक्ट एक्शन डे है, विश्व का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसके बारे में बात नहीं करता है। बंगाल में आज जो हालत है, जो वायलेंस हो रही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। आप वहाँ ओबेरॉय होटल के सामने चले जाइए, एक जमाने में वो मॉन्यूमेंट था कलकत्ता का, उसके चारों तरफ कैसे आज ममता जी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने उसको बर्बाद कर दिया, घेर लिया उसको। ये मैं क्या बोलूं, तो आपकी आंखों के सामने है। तो हर किसी के सत्य को प्रोपेगेंडा बोल देना, उसको बीजेपी का आदमी बोल देना, उसको संघी बोल देना, इनफ इज इनफ। They want to silence me. My only statement to everybody is that now it's time that I take some action. You just cannot silence Vivek Ranjan Agnihotra.